Hi students. Today this is the third part of globalization and Indian economy. In this part we will study about the liberalization of Indian economy, means liberalization and foreign trade investment. Before this we have studied, before this video we have studied last video. In that we have studied the factors that has helped globalization flourish, that is technology. Technology had helped a lot to flourish their investment. Then second one was the intercommunication and internet and computer helped to flourish the globalization. The third one is liberalization and foreign trade investment. Here, what is this liberalization and what is this foreign trade investments? Means this also helped the MNCs to make the world together or close to each other. This is the one of the factor of the bringing all the countries together or getting interconnecting to each other through trade. How? Liberalization means the liberalization of trade allow foreign companies to start their business as government restrictions are removed. See, one of the main reason it is, we can say that the liberalization means trade, if there are any liberal to all countries, okay, this is the liberalization by the developed country. By the developed country, the companies of the developed countries, they started their business as government restrictions are removed from them. Now we'll study how they have done. Then trade barriers. Trade barriers, some restrictions on foreign goods, like there are the government restrictions. Okay, there are some government restrictions about like tax on imports. Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. And this was also a great policy, foreign trade policy or trade barrier by the government. It is very much necessary for the developing countries. Okay, and the Indian government after independence had but barriers to foreign investment. They put these barriers to the foreign investment because we have struggled a lot from the barrier from the foreign trades. So we had a lot of restrictions like tax एंड अदर थिंग्स, जैसे कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसी कंपनियाँ आप लगा सकते हैं. दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स आर written. This was considered necessary to protect the producer within the country from foreign competition. Even our production get the हमारा competition कम हो जाता है. मैंने आपको दिखाया था कि हमारी डॉल्स जो है यहाँ नहीं बिकती हैं बिकॉज हम क्या है चाइनीज़ के कम पैसों में और महंगी मिल जाती है. तो हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी ताकि हमारी भी जो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बिके. ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स इन 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट टाइम हैड कम फॉर इंडियन 91 producer to compete with the producer around the globe. So to compete with the other countries, we have to follow some of the rules, and it felt that competition would improve the performance of producers within the country, since they would have to improve their quality. The producer have to improve their quality, then we can have a competition with the other countries. We can have a globalization. Our companies can also follow the globalization. Barriers to foreign trade. Government had some barriers to the foreign trade. बाहर के देश वाले यहाँ पर ऐसे restrictions पर ही आ सकते हैं. Foreign investment were removed to a large extent. In 1991 foreign investment were removed in a large extent. Removing of these restrictions, barriers set by the government was termed as liberalization. इसको कहा जा गया था liberalization. मतलब कि गवर्नमेंट ने एक
फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को कहाँ तक होना चाहिए, एक बैरियर बनाया था, उसको कहते थे ट्रेड बैरियर, कि कैसी कंपनियां हमारे यहाँ सेटअप कर सकती हैं, कितने फॉरेन ट्रेड आ सकते हैं, कितने हम टैक्स लेंगे। दीज आर द बैरियर्स पुट ऑन बाय द गवर्नमेंट फॉर द आवर ट्रेडर्स, हमारे ट्रेडर्स के लिए, हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि हम भी फ्लॉरिश करें, हमारी कंपनी भी फ्लॉरिश करे और हम भी फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट से कंपटीशन ले सकें। एंड दिस वाज द लिबरलाइजेशन कॉल्ड। अब ये क्या हुआ, जब लिबरलाइजेशन की वजह से हम फॉरेन ट्रेड में कंपटीशन में आ गए। अब यहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये है WTO। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज डील्स विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड अमॉन्ग द नेशंस। और ये क्या हुआ था, ये उन नेशंस का था जो ये इंटरनेशनल, इट इज़ द initiated by the developed country. This WTO is initiated, ये start किया गया था developed country. Why? Because they want to invest or they want the trade from the developing countries. और उन्होंने कुछ rules बना दिए थे, इस WTO में उन्होंने rules बनाए। What they have ruled? WTO establishes rules regarding the international trade. अब इस रूल्स में क्या था, एटलीस्ट 164 कंट्रीज वेयर दे आर जॉइंट टुगेदर एंड दे हैव मेड WTO। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें उन्होंने एक रूल्स बनाए थे। सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम्स टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। हमने इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया, हर कंट्री के, अपने कंट्री इंडिया का लिबरलाइजेशन बनाया गया, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे ही WTO ने भी एक लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें उन्होंने रूल्स बनाए थ्रू विच WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। they have the rules that is free trade for all. one thing in practice they want free trade, है ना, वहाँ बैरियर्स हटा दो, ट्रेड बैरियर हटाओ, they have made this and practice it is seen that the developed countries have unfairly retained their trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. An example of this is the current debate on this trade on agricultural products. उन्होंने क्या किया कि अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दो, हम ट्रेड बैरियर्स को नहीं मानेंगे किसी भी कंट्री का और हम फ्लॉरिश करेंगे। एंड दिस वाज द इम्पैक्ट। अब ग्लोबलाइजेशन, ये सब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारे मतलब किसी भी कंट्री ग्लोबलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज कैसे कंट्रीज के ऊपर लिबरलाइजेशन फॉलो कर रही थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में क्या हो रहा था। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन एडवांटेजेस ऑल्सो। कंज्यूमर्स को तो एडवांटेजेस था, क्या था, वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी में इजी सस्ता पा रहे थे। कंज्यूमर नाउ एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी with the low price for several products. As a result, these people enjoy higher standard of living than was possible earlier. पहले से ज़्यादा स्टैंडर्ड जिंदगी जी रहे हैं और इजी, सस्ता, है ना। बट प्रोड्यूसर्स के लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम थी। प्रोड्यूसर्स के लिए ये क्या थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। प्रोड्यूसर को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, हमें हमारे प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्शन थे, कंपनीज थे, लोकल कंपनीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी मिल रही है, प्रोडक्शन मेथड में मिल रहा है, और राइज ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और कुछ हमारे मल्टी इंटरनेशनल एमएनसीज तैयार हो रहे थे। लॉस टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, लेकिन जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उसमें बहुत लॉस हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही थी। अब इसमें डिसएडवांटेजेस, मतलब कहने का मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आ रहे थे ग्लोबलाइजेशन से,
ठीक है। बट आपकी प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस भी थी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी इसकी। क्या था? प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, जो लेबर लॉज बनाए जाते थे वो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, ठीक है। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, और फाइनेंशियल सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कभी नहीं मिलता था। और नेगोशिएशन विथ WTO, और ये तो बहुत ज़रूरी था कि WTO से फाइट करना। कहने का मतलब, लेट मी एक्सप्लेन दीज लाइन्स। यहाँ पर है, गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट को इंश्योर करना था, गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जो लेबर लॉज हम बनाते हैं कि आप इतने काम के लिए इतने लेबर को अप्लॉय करते हैं, या इतने टाइम के लिए इतने वेजेस ही हमने बना रखा है, ये हमारा लिबरलाइजेशन या फॉरेन ट्रेड का या ट्रेड बैरियर हमने बना रखा है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर, एंड स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। हमें उन्हें सपोर्ट करना ज़रूरी था, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो, उन्हें टाइम भी देना चाहिए ताकि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो फॉरेन प्रोड्यूसर या फॉरेन प्रोड्यूसर से कंपटीशन कर सकें। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, जो उन्होंने बना रखे थे, इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयरर रूल्स के लिए फेयर करना हो जरूरी है। एंड विद स्मॉल इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO के लिए फाइट करने के लिए तैयार कुछ कंट्रीज से, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज से टैग करके उन्हें WTO से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट को रेडी रहना